Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss very important topics in solid state physics for BSc Part 3 Physics Honors and Physics General courses for all universities in lecture number 1. The topics are crystal lattice, crystal planes, unit cells and Miller indices. First of all, crystal lattice. A crystal lattice is defined as the large assembly or large collection of lattice point in three-dimensional crystal to form three-dimensional crystal structure as represented in figure number 1. This is crystal lattice, which is the arrangement of large number of lattice points to form crystal lattice or a space lattice. These are the lattice points, various lattice points represented in the diagram. Taking any lattice point, suppose this lattice point as center O, we have a plane lattice separated by distance in which two lattice points are separated by distance small a along OA axis and along OB axis two lattice points are separated by distance small b. Thus, a plane lattice is constructed. Plane lattice means two-dimensional, that is two-dimensional lattice is constructed. But if these lattice points are repeated further to form three-dimensional crystal structure, then it is called crystal lattice or plane lattice. A space lattice. Plane lattice is the two-dimensional lattice, but crystal lattice is the three-dimensional lattice. तो इस ढंग से टू डायमेंशनल जो प्लेन लैटिस है उसे रिप्रेजेंट किया गया है साइड ओ ए एंड साइड ओ बी के द्वारा, मतलब एक्सिस ओ ए एंड एक्सिस ओ बी के ओ बी द्वारा, in which two lattice points are separated along OA axis as a small a, while along OB axis two lattice points are separated by distance b. लेकिन जब बहुत से लैटिस पॉइंट्स को, मतलब एक प्लेन लैटिस को जब एक्सटेंड कर दिया गया अदर पॉइंट्स से होकर, तो इस प्रकार जैसा कि फिगर में नीचे रिप्रेजेंट किया गया है, इस प्रकार थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. थ्री डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इधर भी अगर स्केच करें डिफरेंट पॉइंट्स को और भी पॉइंट्स लेकर के, अगर उन सभी पॉइंट्स उन सभी पॉइंट्स से होकर अगर एक और एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, दोज पॉइंट्स आर दोज लैटिस पॉइंट्स आर extended towards along z axis, then three-dimensional structure can be obtained, which is called crystal lattice or a space lattice. Now second point is crystal planes. A crystal
lattice may be considered to be made up of a large number of parallel equidistant planes called the lattice planes, which pass through the lattice points. A set of lattice planes are represented by A, encircled A, encircled B, encircled C, encircled D. तो A अंडर ब्रैकेट, B अंडर ब्रैकेट, A अंडर द सर्किल, B अंडर द सर्किल, C अंडर द सर्किल, D अंडर द सर्किल, ये 4 सेट है। और यह 4 सेट किसका है? क्रिस्टल प्लेन्स का है, जो कि लैटिस पॉइंट्स, जो कि क्या है? पैरेलल, दीज आर पैरेलल लाइन्स और पैरेलल प्लेन्स पासिंग थ्रू द लैटिस पॉइंट्स. So we have defined crystal planes which are made of large number of पैरेलल इक्विडिस्टेंट प्लेन्स. ये पैरेलल प्लेन्स है जिनके बीच का, किसी दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है. एंड दीज प्लेन्स आर पास थ्रू different lattice points. So these are 4 sets of lattice points and lattice planes represented in figure 2. तो क्रिस्टल प्लेन्स क्या हो गया? क्रिस्टल प्लेन्स लैटिस पॉइंट्स से होकर पास करने वाला पैरेलल इक्विडिस्टेंट, बराबर दूरी पर इक्विडिस्टेंट प्लेन्स का कलेक्शन, जैसा कि 4 सेट में इस फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है, A, B, C, D. Now unit cells. The parallelopiped, which is a cube-shaped structure formed by using 3 basis vectors, a small a vector, a small b vector and a small c vector, as concurrent edges or sides of the parallelopiped along x, y and z axis respectively is called the unit cells of the space lattice or crystal lattice, which is shown in figure 2. Thus, a unit cell is the smallest closed geometrical figure as shown in figure 2, the repetition of which in 3-dimensional space will give the actual crystal structure. तो यूनिट सेल्स एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर या फिगर है जिसका फॉर्मेशन होता है 3 बेसिस वेक्टर्स, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर एंड स्मॉल सी वेक्टर को किसी पैरेललोपाइप्ड का 3 एजेज और 3 साइड्स सपोज करते हुए क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो ऐसा क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को यूनिट सेल्स कहा जाता है. और यूनिट सेल्स का, चूँकि यूनिट सेल्स जैसा कि इसका नाम है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है, स्ट्रक्चर है, और इसका रिपीटिशन से
हम थ्री डायमेंशन में एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर सकते हैं। Now in last we have to discuss Miller indices, which is a very important topic in solid state physics. The position and orientation means direction. Orientation means direction of a lattice plane in a crystal are determined by three smallest whole numbers denoted by the symbol a small h, a small k and a small l, which have same ratios, that is h, a small k and a small l का रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है, जितना कि which have the same ratios, that is three smallest whole numbers which are called Miller indices have same ratios with one another. मतलब h, k तथा l का एक दूसरे के साथ रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है, जितना कि एज द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन ऑन द थ्री क्रिस्टल एक्सिस, जितना कि उस प्लेन का तीनों क्रिस्टल एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड पर इंटरसेप्ट होता है। मतलब उस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल का रेशियो के इक्वल होता है थ्री स्मॉलेस्ट होल नंबर्स विच आर कॉल्ड मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस के एच, के एंड एल का एक दूसरे के साथ रेशियो सेम होता है, जितना कि उस प्लेन का थ्री क्रिस्टल एक्सेस एक्स, वाई एंड जेड पर इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का होता है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, रिवर्स। These three smallest whole numbers are denoted by the symbols a small h, a small k and a small l, as I have already mentioned. And these are, that is, a small h, a small k and a small l are known as Miller indices of that plane, and the plane is specified as under bracket h, k, l or HKL plane. So the ratio of, from the definition it is clear that ratio of Miller indices, that is H ratio K ratio L, और आपस में H, K तथा L का रेशियो सेम होता है, और यह उतना ही होता है जितना कि क्रिस्टल प्लेन का एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के एलोंग इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल का होता है। तो दैट इज एच रेशियो के रेशियो एल इक्वल्स टू 1/p रेशियो 1/q रेशियो 1/r, where p, q and r small r are small integers, maybe a small integers or fractions, and p, q and r are the intercepts of the crystal plane along three crystal axes, that is along x, y and z axis respectively. अभी क्रिस्टल एक्सिस का थ्री कोऑर्डिनेट और थ्री क्रिस्टल एक्सिस एक्स, वाई, जेड के लॉन्ग इंटरसेप्ट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्स एक्सिस है
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. नाउ इंटरसेप्ट कैन बी of the plane can be represented by PA vector, three translational vector, by the translation vectors, three translation vectors, P vector, a small p vector, Q vector and R vector, represented as a small PA vector, a small QB vector and a small RC vector in case of a plane. The lattice point can be represented by the fundamental translational vectors as a small p vector, Q vector and R vector. So the intercepts of the crystal plane along the three crystal axes x, y, ox, oy and oz can be represented in this diagram. So intercept of the plane along x-axis is let it PA vector, let it as PA vector. This is the intercept along x-axis, crystal axis, x-axis, that is PA vector. Along y-axis it is PB vector, let it as PB vector, and along z-axis let it as along z-axis the intercept of the plane is RC vector, RC vector, PA vector along x-axis, QB vector along, not PB but it is QB, a small QB vector along y-axis and a small RC vector along z-axis. These are the three intercepts of the plane, crystal plane along three crystal axes or coordinate axis OX, OY and OZ. So to determine Miller indices of a particular given plane, first of all we have to find the intercepts of the plane on the three crystal axes OX, OY and OZ respectively. Let it be the ratio of PA vector, ratio QB vector and RC vector. So to determine Miller indices of a given plane, the following procedures can be adopted. So the procedures to find Miller indices of a given plane, crystal plane, can our first step is to find the intercepts along three crystal axes, that is OX, OY and OZ axis respectively. Since equation of a plane is represented by equation of a plane is x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1 होता है. This is the equation of a plane, x y a plus y y b plus x y a की जगह p भी लिखा जा सकता है, x y p, b की जगह q भी लिखा जा सकता है और z की जगह r भी लिखा जा सकता है. तो x y p plus y y q plus z y small r is equal to 1. This is the equation of a plane. But in case of a crystal plane defined by the lattice points, these intercepts
can be represented by fundamental translational vectors, that is p vector equals to स्मॉल p मैग्नीट्यूड हो गया, और स्मॉल a वेक्टर बेसिस वेक्टर अलोंग x एक्सिस, q वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ q एंड इनटू बेसिस वेक्टर अलोंग y एक्सिस जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड r वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ r इज स्मॉल r एंड बेसिस वेक्टर अलोंग z एक्सिस, दैट इज क्रिस्टल एक्सिस z एक्सिस इज c वेक्टर, स्मॉल c वेक्टर इज द बेसिस वेक्टर अलोंग क्रिस्टल एक्सिस o z एक्सिस। तो p को pa, q को q, p वेक्टर को pa स्मॉल p a वेक्टर, स्मॉल q वेक्टर को स्मॉल q b वेक्टर एंड स्मॉल r इज रिप्रेजेंटेड बाई rc वेक्टर। इसलिए पहला स्टेप होगा मिलर इंसिडेंस इंडिसेस को डिटरमाइन करने का किसी गिवन क्रिस्टल के प्रॉब्लम में। तो पहले तो उसका इंटरसेप्ट तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्रिस्टल एक्सिस पर हम डिटरमाइन करेंगे, और उसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या होगा, तो हम उसे सपोज कर सकते हैं किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी ए क्यू बी, पी ए वेक्टर क्यू बी वेक्टर आर सी वेक्टर। सो वी कैन लेट इट बी एज द रेशियो ऑफ पी ए वेक्टर रेशियो पी बी वेक्टर रेशियो पी सी वेक्टर। अब इसका इंटरसेप्ट जब मालूम हो जाएगा तो इंटरसेप्ट कौन हो गया, पी क्यू एंड आर, जैसा कि डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया था। इंटरसेप्ट हो गया पी ए वेक्टर, पी बी वेक्टर एंड आर सी वेक्टर, वेयर पी क्यू एंड आर आर स्मॉल इंटीजर्स और मे बी फ्रैक्शंस। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, उसका रेसिप्रोकल्स लेकर उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। सेकेंड स्टेप में नाउ टेक द second step is now take the LCM and take the reciprocals of the intercepts along three crystal axis, that is OX along OX, OY and OZ axis respectively, OZ axis. Now take the reciprocals of the intercepts along OX, OY and OZ axis. सेकेंड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप तो इंटरसेप्ट हम लोगों को इंटरसेप्ट किसी प्लेन का क्रिस्टल प्लेन का थ्री क्रिस्टल एक्सिस और थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, OX, OY तथा OZ के लॉन्ग इंटरसेप्ट लेना होगा। और सपोज किया गया कि वह इंटरसेप्ट किस रेशियो में होगा, स्मॉल p स्मॉल a वेक्टर रेशियो q स्मॉल b वेक्टर रेशियो स्मॉल r c वेक्टर। चूँकि इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है x/p प्लस y/q प्लस z/r इक्वल टू 1। तो लैटिस पॉइंट के केस में हम ट्रांसलेशन थ्री ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के द्वारा स्मॉल p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस प्लेन को, जो कि लैटिस पॉइंट द्वारा डिफाइन होता है। तो और उसके इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन तीनों वेक्टर्स के फॉर्म में, पी ए वेक्टर, क्यू बी वेक्टर एंड आर सी वेक्टर। इसलिए उस फॉर्म में उसके रेशियो के द्वारा पी ए वेक्टर रेशियो क्यू बी वेक्टर रेशियो आर सी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि नाउ टेक द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स along OX, OY एंड OZ एक्सिस, दैट इज रेसिप्रोकल ले लिया, दैट इज 1 बाई P रेशियो 1/Q रेशियो 1/R। इंटरसेप्ट का थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस या थ्री क्रिस्टल एक्सिस के लॉन्ग थ्री क्रिस्टल एक्सिस के लॉन्ग जो इंटरसेप्ट था उस प्लेन का, क्रिस्टल प्लेन का, तो उसका इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल ले लिया गया 1/P रेशियो 1/Q रेशियो 1/R
एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप में क्या किया जाएगा, अब इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का एलसीएम लेकर के उस एलसीएम से रेसिप्रोकल्स को, तीनों रेसिप्रोकल्स को, मैंने इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना होगा और वही दैट इज द रिजल्ट, और वही क्या होगा, वही मिलर इंडिसेस एच के एंड एल का वैल्यूज होगा. नाउ टेकिंग द एलसीएम of the denominators of the reciprocals of the intercepts and multiply those reciprocals by the LCM of the denominators of the reciprocals of the intercepts and multiply those reciprocals by the LCM, which is the final step. LCM of बाई द एलसीएम जो हमने ऑब्टेन किया, किसका एलसीएम, जो रेसिप्रोकल है इंटरसेप्ट का, उसके डिनोमिनेटर्स का पी क्यू आर स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर का. तो बाय द एलसीएम वी ऑब्टेन द मिलर इंडिसेस एच स्मॉल के अंडर ब्रैकेट स्मॉल एच स्मॉल के एंड स्मॉल एल. स्मॉल एच स्मॉल के एंड स्मॉल एल आर कॉल्ड मिलर इंडिसेस. तो मिलर किसी दिए गए प्लेन का, फॉर ए गिवन प्लेन वी कैन डिटरमाइन these three smallest numbers, a small p, a small q and a small r by these procedures which we have already mentioned. Now taking an example for clear cut conception of Miller indices, or to determine Miller indices clearly. अब मिलर इंडिसेस को डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसीड्यूर्स हमने फॉलो किया, उसका मेंशन किया, उस पर अगर उन प्रोसीड्यूर्स को अगर किसी एग्जाम्पल पर अगर अप्लाई किया जाए तो और भी क्लियर कट, माने मिलर इंडिसेस डिटरमाइन करने के लिए क्लियर कट इंफॉर्मेशन या क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ऑब्टेन होगा. तो फॉर एग्जांपल, सपोज ए प्लेन व्हिच इंटरसेप्ट्स ऑन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 4, 1, 2. दिस इज ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू इवेलुएट मिलर इंडिसेस. तो एग्जांपल इज द प्रॉब्लम ऑल्सो. तो लेट द intercepts of a crystal plane on the 3 crystal axis or coordinate axis OX, OY and OZ. On the 3 crystal axis are given by 4, 1, 2. Calculate Miller indices of the given plane, that is of this plane. यह मिलर इंडिसेस पर एक प्रॉब्लम है और इसके हेल्प से मिलर इंडिसेस को डिटरमाइन करना और भी आसान हो जाएगा बाय यूजिंग द
प्रोसीड्यूर्स टू डिटरमाइन मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस को डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसीड्यूर्स को हमने मेंशन किया है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका यूज करते हुए इस गिवन प्लेन का प्रॉब्लम में जो दिया गया प्लेन है क्रिस्टल प्लेन, उसका मिलर इंडिसेस क्या होगा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में गिवन प्लेन का 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस और 3 क्रिस्टल एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4 1 2। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इंटरसेप्ट का जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक रेसिप्रोकल्स प्रोसीड्यूर नंबर 1 ऑफ द गिवन इंटरसेप्ट, मतलब reciprocal of the given intercepts 4 1 and 2 on 3 crystal axis. These are the intercepts of a crystal plane on the 3 coordinate axis x y and z respectively. तो इंटरसेप्ट का फर्स्ट में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ द intercepts, the given intercepts of the plane, given intercepts of the plane which are, इंटरसेप्ट क्या हो गया, विच आर 4 का 1/4, 1 का इंटरसेप्ट 1/1 दैट इज 1, 2 का इंटरसेप्ट 1/2। अब एलसीएम ले लिया जाए। टेक सेकेंड स्टेप में टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ these reciprocals of the intercepts. Take LCM of the denominators of the reciprocals of the intercepts, reciprocals of the intercepts। डिनोमिनेटर क्या है, इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का डिनोमिनेटर क्या है, 4 1 2। तो 4 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, दैट इज 4। अब इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे ईच रेसिप्रोकल टर्म को, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म में 1/4। फर्स्ट जो रेसिप्रोकल है इंटरसेप्ट का, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, मिलर इंडिसेस मिल जाएगा। सो मिलर इंडिसेस आर HK LR एंड LR। क्या करेंगे, फर्स्ट रेसिप्रोकल है इंटरसेप्ट का 1/4 इंटू 4, फिर सेकेंड रेसिप्रोकल है 1/1 दैट इज 1, 1 इंटू 4। इसमें भी एलसीएम से इस टर्म में, इस रेसिप्रोकल में एलसीएम से, मतलब रेसिप्रोकल्स के इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल्स के एलसीएम से ईच रेसिप्रोकल टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/4 इंटू 4 एलसीएम से किया, फिर सेकेंड टर्म में भी किया 1 इंटू 4, एंड फिर थर्ड रेसिप्रोकल टर्म इंटरसेप्ट का 1/2, इसमें भी 4 से करें, इसमें भी 4 से सेम एलसीएम से करना है। क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 4 4, और 2 से 4 कैंसिल होकर के 2 हो गया। सो मिलर इंडिसेस आर HKL कितना हो गया, H इक्वल टू 1, K इक्वल टू 4 एंड L इक्वल टू 2। सो HK मिलर इंडिसेस which is denoted by the symbol h, small k and small l under bracket इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट टर्म में 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, सेकेंड हो गया 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज 4, एंड थर्ड मिलर इंडिसेस L कॉरस्पॉन्ड टू 2। सो मिलर इंडिसेस अंडर ब्रैकेट small h, small k and small l are 1, 4 and 2, and this is the answer of this problem। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के BSc पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स या फिजिक्स जनरल के फिजिक्स के पेपर्स में मिलर इंडिसेस के साथ उस पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स में दिया जाता है। तो हम आसानी से मिलर इंडिसेस को डिफाइन करना, एक्सप्लेन मिलर इंडिसेस एंड ऑब्टेन द मिलर इंडिसेस फॉर ए गिवन प्लेन कुछ इंटरसेप्ट्स आर गिवन, जैसे कि इस प्रॉब्लम में था कुछ इंटरसेप्ट्स द
find the intercepts, find the Miller indices of a crystal plane whose intercepts are on the three crystal axes OX, OY and OZ are 4, 1 and 2 respectively। तो इस प्रॉब्लम में था। कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा तो उसमें डाटा चेंज करके दूसरा डाटा हो सकता है। और तो वैसा मैंने डिफरेंट डाटा डिफरेंट इंटरसेप्ट्स प्रॉब्लम्स में दिया रहेगा और उससे मिलर इंडिसेस उस पार्टिकुलर प्लेन का ऑब्टेन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के BSc पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स तथा जनरल के एग्जामिनेशन पेपर्स में। तो यह वीडियो अब समाप्त होता है। दिस वीडियो इज कंक्लूडेड नाउ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट with another important topic for examination point of view also in solid state physics in lecture number 2। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।